خدام العلماء فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام غالب اکیڈمی بستی حضرت نظام الدین نئی دہلی میں عظمت حرمین شریفین و فضیلت علماء کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں قرآن اندازی کے ذریعے 10 خوش نصیب علماء کا عمرہ کے لیے انتخاب عمل میں آیا۔ کانفرنس کے بعد میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے مشہور اسلامی اسکالر پروفیسر اختر الواسع و جامعہ ہمدرد یونیورسٹی کے وائس چانسلر و خدام العلماء شیخ حفیظ اللہ شریف و کانفرنس کے روح رواں مفتی عبدالواحد قاسمی و دلی سرکار کے منتری جناب عمران حسین صاحب نے کیا کچھ کہا، دیکھتے ہیں۔ غالب اکیڈمی حضرت نظام الدین کے اندر خدام العلماء ویلفیئر فاؤنڈیشن کے تحت ایک عظمت حرمین شریفین فضیلت علماء کانفرنس کے انعقاد کے تحت یہاں سب جمع ہیں۔ ہمارے بیچ خاص مہمان موجود ہیں، پروفیسر جناب اختر الواسع صاحب۔ ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ آپ کو اس پروگرام میں آ کر کیسا لگا اور کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ یہ پروگرام جو ہے اپنی نوعیت کا پروگرام، جس کے لیے خدام الحرمین اور فاؤنڈیشن کے ذمہ جو ہیں مبارکباد کے مستحق ہیں، اور ان سب سے زیادہ معاف کیجیے گا وہ جو ہیں کو ان اساتذہ کو جو کہ استطاعت نہیں رکھتے ہیں، انہیں زیارت حرمین شریفین جو ہے اس کا موقع ملنا جو ہے غیر معمولی بات ہے، اور اس کے لیے جتنی بھی ستائش کی جائے وہ کم ہے۔ کہ اس کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ ایسا ہے کہ حج جو ہے اس کو یقینی بنانے کے لیے اور عام کرنے کے لیے لوگ جیسے کہ حفیظ اللہ شریف صاحب کر رہے ہیں، یہ بڑی بات ہے اور یہی ہونا چاہیے۔ تو ماشاءاللہ یہ تھے جناب پروفیسر اختر الواسع ہیں، اور یہ تیسرا قافلہ انشاءاللہ 22 فروری کو دہلی کے سرزمین چوتھا قافلہ روانہ سے جاننا چاہیں گے کہ آپ کے دل میں یہ بات کہاں سے آئی اور آپ نے علماء کو عمرہ پر بھیجنے کا جو یہ پروگرام بنایا ہے، یہ کب سے بنایا اور کس طرح سے یہ بات آپ کے دل میں آئی؟ دیر آئے درست آئے، الحمدللہ اللہ نے مجھے اس خدمت کو قبول کیا۔ میں نے تو میرے علماء دین کی خدمت میں پہلے بھی تھا، اب بھی ہوں، آگے بھی رہوں گا۔ یہ جو خدمت جو چھوٹی سی میں جو پیش کر رہا ہوں میرے علماء، میرے اماموں کے خدمت میں، جو عمرہ کے لیے، یہ کوئی بڑی بات نہیں۔ ہر صاحب ثروت، ہر مصلی میرے علماء کو، میرے جو ہیں اماموں کو جو ہے سفر حج ہو یا عمرہ ہو بھیجنا لازم ہی ہے، کیونکہ ہم ان کے تابع نماز پڑھتے ہیں، وہ ہمارے نمازوں کو پر کرتے ہیں، وہ ہمارے نمازوں کی ذمہ داری لیتے ہیں، ہمارا حق ادا نہیں کر سکتے، پھر بھی ہم کچھ جو ہے عمرہ کو بھیج کے اللہ کو راضی کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ میری جانکاری میں ہے کہ آپ پہلے سیاست میں تھے اور اس کے بعد علماء کی خدمت کو آپ نے میدان بنایا۔ میں جاننا یہ چاہتا ہوں کہ آپ جو علماء کی خدمت کر رہے ہیں اس پلیٹ فارم سے اور دیگر پلیٹ فارم سے، آپ کو کیسا محسوس ہو رہا ہے، کیسا لگ رہا ہے؟ دنیا میں جب آئے تو ہماری تقدیر لے کے آتے ہیں، پتہ نہیں ہم کہاں جائیں گے، کہاں آئیں گے۔ میں نے ایک اشعار پڑھا، دنیا کے بتقتوں میں پہلا وہ گر خدا کا، ہم اس کے پاسباں ہیں، وہ پاسباں ہمارا۔ وہ پاسباں کی طرف میری نظر پڑی تو میں نے تو عمرہ کر لیا، حج کر لیا، لیکن تابع امام کے، میرے امام جو ہے اللہ کے گھر کی جو ہے زیارت کرے، وہ جو ہے میں نے من میں ٹھان لیا، میرے صرف خاص سے میرے عالم دین کو، میرے علماء کو، میرے جو ہے جو اماموں کو جو ہے میں جو ہے مسلسل یہ چوتھا قافلہ بھیج رہا ہوں۔ انشاءاللہ آگے بھی بھیجتا رہوں گا، اللہ تعالیٰ تا حیات رکھے تک میں جو ہے میرے صرف خاص سے میرے علماء کو، میرے عالم دین کو، میرے اماموں کو اور موذین کو جو ہے اللہ کے گھر کی دیدار کراتے رہوں گا۔ یہ تھے جناب محب العلماء الحاج اللہ شریف جو اپنے علماء کے تعلق سے اظہار خیال فرما رہے تھے۔ اب ہمارے بیچ خاص مہمان ہیں آج کے جامعہ ہمدرد یونیورسٹی کے وائس چانسلر جناب افشار عالم صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ آپ سے میں جاننا چاہوں گا کہ آپ اس پروگرام میں آئے تو آپ کو کیسا محسوس ہوا؟ سب سے پہلے تو میں مبارکباد دیتا ہوں جن لوگوں کو آج قرآن اندازی میں 8 لوگوں کو سلیکشن کیا گیا اور 5 کو نیکسٹ لائن کے لیے سلیکٹ کیا گیا۔ تو میں جیسے کہ اختر الواسع صاحب نے ہی کہا کہ میں اس فاؤنڈیشن کو مبارکباد دیتا ہوں جس کو اس پروگرام کو انہوں نے
अरेंज किया, और जनाब उबैदुल्लाह शरीफ साहब जिन्होंने इस चीज़ को किया। तो मैं ये आवाम करूँगा कि लोग इस पे आएँ। और बहुत अच्छी बात आपने कहा कि जो उलमा हैं वही हमारी नमाज़ पढ़ाते हैं, तो उनको अगर हम ज़ियारत हज और मदीने और मक्के का ज़ियारत कराते हैं तो ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। और वो अल्लाह के घर का दीदार करने के बाद, क्योंकि देखिए उलमा ही हमारे कौम के लीडर हैं, तो लीडर को भी वो चीज़ जानना चाहिए जो कि मैंने अपनी तकरीर में भी कहा कि जब लीडर ही सब कुछ जानेगा और इस्लाम को अच्छी तरीके से दुनिया को बताएगा तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। तो ये एक बहुत अच्छा सिलसिला आपने शुरू किया है, मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि ऐसा सिलसिला हम सबको ही अल्लाह तौफीक दे कि हम भी ये काम करें। देखिए जामिया हमदर्द एक क्योंकि सरकारी इंस्टीट्यूशन है तो हम लोग ये नहीं कर सकते, लेकिन हम लोग दावत दे सकते हैं और सऊदी एम्बेसी को बोल सकते हैं कि आप हमारे उलमा को ज़्यादा से ज़्यादा हज पे ले जाएं, क्योंकि हमारे यहाँ तो ऐसा सच कोई ये नहीं है, लेकिन ये एक शुरुआत हुई है और ये एक पहल है, तो इसको आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि देखिए पहल तभी होता है जब आपका नीयत साफ़ होती है, जब आप नीयत करेंगे तो अल्लाह में बरकत देंगे। ऐसे इक़दाम उठाने के लिए दिल्ली सरकार से कुछ कहना चाहेंगे? मैं चाहूँगा कि देखिए जिस तरह केजरीवाल साहब और लोगों को भी दे रहे हैं, तो ये उलमा के लिए भी वो फैसिलिटी रखे वक्फ बोर्ड के तहत, ताकि हमारे उलमा भी अजमेर शरीफ तो भेज रहे हैं केजरीवाल, तो वो मक्का और मदीना के भी ज़ियारत कराएं। और आप कुछ कहना चाहेंगे? आप कुछ कहेंगे क्योंकि आप पूरे जी मुझे नीचे लेंगे आपका लक्ष्य आ जाओ, आइए सर, आइए हजरत, इस तरफ आइए, स्पेस पूरा मिल जाएगा। बस हाँ, लाइट बंद करो, लाइट आइए सही लाइट अब देख रहे हैं। अब मुझे भाई मुझे उधर जाना, सेक्रेटरी हैं या मुफ्ती अब्दुल वाहिद साहब हमसे आप अब हमसे जुड़ना। मुफ्ती अब्दुल वाहिद साहब, आज का जो प्रोग्राम था और कितने और प्रोग्राम करेंगे आपकी ये सोचना? देखिए आज का ये प्रोग्राम दिल्ली की सरजमीन पर, जो मुल्क की राजधानी और दारुल हुकूमत है, अपनी नौइयत का ये पहला प्रोग्राम था। इस तरह के प्रोग्राम इस सरजमीन पर नहीं हुए और इस फाउंडेशन का ये चौथा प्रोग्राम था। 22 तारीख को उलमाए किराम पर 20 उलमाए किराम पर मुश्तमिल इंशाअल्लाह हरमैन शरीफैन की ज़ियारत के लिए रवाना होगा। इसके रूह रवां मुहिब्बुल उलमा अलहाज हफीज़ुल्लाह शरीफ साहब हैं। आपके सवाल का मैं जवाब दे दूं कि आपने कहा कि ये कब तक प्रोग्राम चलता रहेगा। पूरी ज़िंदगी इस प्रोग्राम के अमल को किया जाता रहेगा, जब तक जान है उस वक्त तक ये प्रोग्राम होता रहेगा। ये पहला प्रोग्राम था, ये आखिरी प्रोग्राम नहीं है। दिल्ली से इस वक्त फ़िलहाल 10 उलमाए किराम का इंतखाब हुआ है, 8 कुरानदाजी के ज़रिए से, 2 का एजाज़ी तरीके पर, और साथ ही अगले काफ़िले के लिए 5 का इंतखाब हो गया है। जब अगली मर्तबा उन 5 के काफ़िले को भेजने की बात होगी तो उस मौके पर 5 का इंतखाब होगा और यूपी से फिर 10 लेकर 20 उलमा पर मुश्तमिल ये काफ़िला, 5वां काफ़िला इंशाअल्लाह रवाना होगा। इस वक्त जो है हमारे पास कुल 83 फॉर्म आए थे, जिसमें 8 शराइत पूरे न होने की वजह से शरीक न हो सके। कुल 75 हज़रात कुरानदाजी में शरीक हुए। इसमें कुरानदाजी के अमल में 9 गैर हाजिर थे। तो इस तरह से 67 उलमाए किराम के दरमियान कुरानदाजी का अमल हुआ और 8 उलमाए किराम को फौरी तौर पर इसी काफ़िले के लिए मुंतखब कर लिया गया है और 5 को कुरानदाजी के ज़रिए से अगले काफ़िले के लिए और 2 एजाज़ी तौर पर। तो इस तरह से 15 उलमाए किराम का इंतखाब हुआ। ये मुहिब्बुल उलमा अलहाज हफीज़ुल्लाह शरीफ जो बेंगलौर से ताल्लुक़ रखते हैं और उन्होंने अपने उलमा के ताल्लुक़ से अपने ख़यालात का इजहार किया, वो अपने ज़ाती मसरफ़ से ख़र्चे उठाते हैं। मैं बता दूं कि इसका कोई चंदा नहीं होता है और कोई ज़कात सदक़े वगैरह की रकम से नहीं भेजते हैं, बल्कि अपने ज़ाती मसरफ़ से, अपने खालिस कमाई से उलमाए किराम को उम्रा के सफ़र पर रवाना करते हैं। अब्दुल वाहिद साहब, क्या ऐसे किताब दूसरे स्टेट में भी किए जा रहे हैं या किए जाएंगे? जी, बेंगलौर से 2 काफ़िले रवाना हो चुके हैं,
बिहार से भी रवाना हुआ है और बिहार में भी जो अगली 12 तारीख को कुरान अंदाज़ी का अमल है, तो इस काफ़िले में बिहार से 10 उलमाए कराम का इंतखाब होकर ये 21 को यहाँ पहुँचेंगे और 22 को इंशाअल्लाह ये काफ़िला रवाना होगा। और इरादा ये है कि पूरे मुल्क के अंदर पहुँचा जाए और हर स्टेट के अंदर इस तरह का प्रोग्राम हो ताकि एक बेदारी आए और उम्मत मुस्लिमा के जो सरमायादार हजरात हैं, अहले सरबत हजरात हैं, वो आगे आएँ और अपने उलमा की कदर करना जाने, और जो उलमा अब तक जो है उम्रा ना कर सके हैं उनको उम्रा करा सके अपनी ज़ाती वसीले। जी बहुत अच्छा सवाल है आपका। ये जो फ्री में उम्रा कराने की जो फैसिलिटी है ये सिर्फ आलिम हाफिज़ कारी के लिए है, इसी बिरादरी के लिए है। मिंबर होना ज़रूरी है और इसके मिंबर सिर्फ हाफिज़ कारी ही बन सकते हैं। एक शर्त ये भी है कि वो उलमा हों जो मुस्तती न हो, अपने ज़ाती मसरफ़ से न कर सकते हों, तो ऐसे उलमा का इंतखाब करके कुरान अंदाज़ी के ज़रिए से भेजा जाता है। हमसे जो है जो नहीं, ये दिल्ली के स्टेट पर हमने एक ग्रुप बना लिया है, हमने ऐलान निकाला, अखबार में इश्तिहार निकाला, एड निकाला कि इससे जुड़े, तो 412 उलमाए किराम ने कुछ ऐसे उलमा थे जो उम्रा कर चुके थे इसलिए वो फार्म फिल नहीं कर सकते हैं, तो इस तकरीबन 80-81 नाम आया आपके पास, सबसे कुरान अंदाज़ी हुई और 8 लोगों का नाम आया। जिन लोगों का नहीं आया कहीं ना कहीं वो मलूल होंगे, उनको आखिरी मैसेज क्या देना चाहिए? आखिरी मैसेज ये देता हूँ कि ये पहला प्रोग्राम है, आखिरी प्रोग्राम नहीं है। अनकरीब कर दिया जाएगा और अगले प्रोग्राम के लिए 5 का इंतखाब भी हो चुका है, तो अब मायूस होने की कतई ज़रूरत नहीं है। इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से कि जिन हजरात ने भी फार्म फिल किए हैं सबका प्रोग्राम था। इमरान हुसैन साहब आपसे पूछना चाहते हैं कैसा लगा आपको आज का प्रोग्राम? नहीं, माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम है और मैं तमाम जितने भी लोग जा रहे हैं उम्रे के ऊपर, मैं तमाम लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं और अल्लाह ताला से दुआ करता हूं कि सब लोग साथ खैरियत से जाएं और साथ खैरियत से अपना उम्रा करके अपने घर वापस आएँ। और मैं उनसे गुजारिश भी करता हूं कि अपने लिए भी दुआ करें, मेरे लिए भी करें और तमाम मुल्क के लिए दुआ करें, अमन व अमान के लिए, खुशहाली के लिए दुआ करें। और हफीज़ुल्लाह साहब ने माशाल्लाह ये जो कदम उठाया है और ये जो लोगों को भेज रहे हैं उम्रे के ऊपर, खादिमुल उलमा जो इनकी फाउंडेशन है उसके ज़रिए, तो मैं इन लोगों को, तमाम इनके जितने भी मेंबरान हैं, सबको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और दुआ करता हूँ कि सब लोगों का उम्र अल्लाह ताला कबूल करे। सर आज के दौर में मुसलमानों की हालत दयनीय बनी हुई, क्या कहना चाहेंगे सर? मैं आपका सवाल समझा नहीं। हिंदुस्तान में जो मुसलमान आज हैं, किसी भी एतबार से, माशी तौर पे ले ले, तालीबी एतबार से ले ले, बहुत हालत ख़राब है, क्या कहना चाहेंगे, ये क्या मैसेज देना चाहेंगे उनको? मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि तालीम जो है हदीस और कुरान के ज़रिए भी, और मतलब हमारे प्यारे नबी ने भी कहा है कि अगर तालीम, अपने बच्चों को हमें तालीम दिलानी बहुत ज़रूरी है। और मैं आपको ये भी वाज़ेह करना चाहता हूँ कि दिल्ली हुकूमत, जो अभी दिल्ली की हुकूमत है, अरविंद केजरीवाल जी गवर्नमेंट है, सबसे ज़्यादा काम तालीम पे कर रही है। और मैं ये समझता हूँ जो प्राइवेट स्कूलों में हज़ारों रुपए की फ़ीस दे के जो पढ़ाई होती थी, हर आदमी चाहता था कि मैं अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाऊँ, आज उससे बेहतर पढ़ाई सरकारी स्कूलों में हो रही है। उनको, उनकी जो एजुकेशन का जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्राइवेट से ज़्यादा बेहतर हो गई है। आज जो नीट का एग्ज़ाम हो या कोई और भी कंपटीशन हो, उसमें दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूलों के बच्चे उन्हें प्राइवेट वालों को बीट कर रहे हैं। तो मेरी सब, और एजुकेशन बिल्कुल फ्री है, मतलब प्राइवेट से बेहतर एजुकेशन फ्री है। और मैं सबसे अपील करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से भी कि सब लोग अपने बच्चों को पढ़ाएं, क्योंकि तालीम बहुत ज़रूरी है। और कोई भी कौम, कोई भी मुल्क, कोई भी शहर जब तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक उसका बच्चा तालीम याफ्ता ना हो। तो मेरी आपके चैनल के माध्यम से अपील है। और मैं ये भी अपील है, अगर कोई बच्चा, क्योंकि ये हमारी सबकी ज़िम्मेदारी है, क्योंकि मैं हूँ या आप हो, हम सबकी ज़िम्मेदारी है ये। अगर आपके इलाके में भी कोई बच्चा तालीम नहीं हासिल कर रहा, पढ़ने नहीं जा रहा, किसी मजबूरी के तहत या कोई और वजह, तो आप उसका ध्यान करें। और अगर मेरी कहीं ज़रूरत है तो आप मुझे 24 घंटे में इसके लिए याद कर सकते हैं। सर, बात तालीम की अगर की जाए तो हायर एजुकेशन पे आम आदमी पार्टी काम कर रही है दिल्ली में।
लेकिन जो प्राइमरी है, जो प्राइमरी बेस पे भी होता कर रहे हैं उसके हम लिए तो, क्या कुछ राय प्राइमरी है? पे भी कर रहे हैं, प्राइमरी पे भी काम कर रहे हैं। हम तो प्राइमरी पे भी काम कर रहे हैं, क्योंकि प्राइमरी एजुकेशन पे दिल्ली गवर्नमेंट काम कर रही है, लेकिन क्योंकि एमसीडी अब 15 साल तक जो है बीजेपी के उसमें थी, बीजेपी के शासन से चल रही थी, तो एमसीडी के अब एमसीडी में भी अल्लाह का शुक्र है आम आदमी पार्टी आ गई है। तो मैं ये समझता हूँ कि जिस तरीके से दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूलों को अपग्रेड करके क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे काम किया गया, उसी तरीका एमसीडी के स्कूलों को भी अपग्रेड करेंगे।